Hello everyone, this is your chapter number 18, Important Questions of Pollution of Air and Water. First question is, write down the percentage of nitrogen, oxygen and carbon dioxide in the atmosphere respectively. आपको बताना है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन गैस का, कितना ऑक्सीजन का और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो है बेटा वो एटमॉस्फेयर में है कितनी 78%. अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की तो ये आती है नंबर 2 पे. ऑक्सीजन 21%. एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका परसेंटेज है बच्चे 0.03%. These are the percentages of nitrogen, oxygen and carbon dioxide in our atmosphere. Now next question is, what is air pollution? Air pollution क्या है बच्चे? Air pollution जो हमारे एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, ये सभी हमारी एयर को गंदा कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं. तो हम इस पॉल्यूशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे, when air is contaminated by when air is contaminated by, contaminated का मतलब क्या होता है? गंदा होना. unwanted substances, by unwanted जो हमें नहीं चाहिए, unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living. कैसे unwanted substances हैं? which have harmful effect both on living and non-living it is referred to as air pollution. This is known as air pollution. Now what are air pollutants? Air pollutants क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया था substances which contaminate the air. तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? The substances which contaminate the air are called air pollutants. Example, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. When carbon dioxide present in large amount, it also acts as air pollutant. Others, dust particles, smoke, they are also the part of air pollutants. Now next question is, define smog. What is smog? Smog means fog plus smoke. What is the definition of smog? Smog means smoke present in air plus fog. It is the combination of smoke and fog. Next question number 5. What is the full form of CFCs? CFCs
जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। ये क्या करते हैं? These are used in refrigerators, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेस में आपको मिल जाएंगे। इनका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? दे डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। दे डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। जिस ओजोन होल की बात करते हैं ना हम अंटार्कटिका में, तो उसको डैमेज करने में पूरा पूरा हाथ है CFCs का, है ना। हमें ओजोन लेयर किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से। लेकिन अगर हमारी ओजोन लेयर को कोई डैमेज कर रहा है तो ये बहुत बड़ा हार्म इफेक्ट है हम सभी के ऊपर, बिकॉज इट डैमेजेस द प्रोटेक्टिंग लेयर, ozone layer of atmosphere. Now next is question number 6. What is acid rain? Acid rain क्या है? Acid rain is a mixture of sulfur dioxide with water, nitrogen dioxide with water. When sulfur dioxide, nitrogen dioxide reacts with rainwater, these gases form acids like H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, एंड rain with these acids fall as acid rain. Now next question is explain the term marble cancer. तो मार्बल कैंसर क्या है? When acid rain corrodes the marble of the monument, when acid rain corrode, हाँ, परत को निकालना, corrode करना, corrosion करना, when acid rain corrodes the marble of the monument, of the monument, for example Taj Mahal, it is known as, or this is called the term marble cancer because of acids present in the rain. Give full form of CNG and LPG. CNG means compressed natural gas, whereas LPG means liquefied petroleum gas. Next question is define greenhouse effect. So what is greenhouse effect? आपने देखा होगा बहुत सारे घरों के ऊपर ग्रीन कलर का कवरिंग की होती है ना। तो वो किस लिए की होती है? ताकि जो हीट है वो अंदर ही रहे उस एरिया में, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। ऐसा हम करते हैं ठंडे इलाकों में, है ना। तो आइए समझते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के कंटेक्स्ट में कैसा है। द पार्ट ऑफ द सन्स रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट, है ना, एंड अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस बैक इनटू द स्पेस।
Now, a part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiations further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. Greenhouse means जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, the atmosphere absorbs heat and does not allow it to pass. This Earth's heating is known as greenhouse effect. Greenhouse effect. Now next is explain global warming. Global warming क्या है? Increase in the temperature of Earth's surface is known as ग्लोबल वार्मिंग. इसका रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है और ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जैसे हमारी मीथेन है, वाटर वेपर है, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड है. ऑल दीज gases are responsible to increase the temperature of Earth's surface, and this phenomena, the increase in the temperature of Earth's surface, is also known as global warming. Next is question number 11. Name greenhouse gases. So these are number 1 methane, number 2 nitrous oxide, number 3 water vapor, and number 4 carbon dioxide. These all are known as greenhouse gases. Now what are water pollutants? Water pollutants क्या हैं? बेटा जो पानी को गंदा करें उन्हें हम water pollutants कहते हैं, है ना? The substances that pollute water. The substances that pollute water are called water pollutants. अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूटेंट्स की तो इसमें हमारा सारा सीवेज, गार्बेज, केमिकल्स हैविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हैं पानी को गंदा करते हैं, पॉल्यूट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स. नाउ गिव फुल फॉर्म ऑफ WWF. आपको इस क्वेश्चन में फुल फॉर्म बताने हैं WWF का और NMCG का. तो बेटा WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. जो वर्ड्स यहाँ मेंशन है उनको मैंने कैपिटल से लिखा है. नाउ NMCG इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. What is eutrophication? Eutrophication क्या है?
It is the phenomena it is the process, it is the phenomena which is caused when excessive quantities of chemicals excessive quantities of chemicals or nutrients which get washed from the fields which get washed from fields like fertilizers, act as nutrients for algae to flourish. Act as nutrient to flourish alga. When alga die, it is decomposed and the oxygen is used for decomposition. Oxygen remain less in water which kill the aquatic life and this process is known as eutrophication. यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सेसिव क्वांटिटीज केमिकल्स की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की जो हम यूज़ करते हैं फील्ड्स में, वहाँ से वॉश आउट होकर रेन वाटर के साथ ये पोंड वाटर में या रिवर में जहाँ भी जाता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करते हैं एक्सेसिव केमिकल्स. तो ये अलगी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे पोंड्स जो पूरे ग्रीन कलर के अलगी के साथ फिल्ड होते हैं, उनका सरफेस पानी दिखता ही नहीं है. जब ये अलगी बेटा अपना इसकी एज हो जाती है, व्हेन इट डाइज, तो इसको डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स और अपनी डिकम्पोजिशन में वो बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं पानी के ऑक्सीजन को. अब जब पानी का ऑक्सीजन बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास जो पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम हो जाएगा और फिर जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैं, यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है, वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से ख़त्म हो जाएगी. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन. इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. उनकी जगह हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं. नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर. कंटेमिनेटर गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के नाम हैं वेरी कॉमन, कॉलरा, देन टाइफाइड, and then third one is jaundice. नेक्स्ट डिफाइन पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, है ना. तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, वाटर विच इज़ suitable फॉर ड्रिंकिंग, वाटर विच इज़ suitable for drinking is called potable water. Now explain 3 R's. तो आपकी बुक में जो 3 R's दिए हैं, they are reduce, reuse and रिसाइकल. तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो? जो घरों में हम सामान खरीदते हैं ना, तो हम पॉलीथीन्स वगैरह जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम खरीदें ही ना, ठीक है. हम उसकी जगह क्लॉथ बैग यूज़ करें, है ना. तो इसको हम बोलेंगे रेड्यूस.
रीयूज़ जो हम ग्लास की बॉटल्स हैं जैम्स की, उनको दोबारा हम फिर से किचन में सीड्स, ड्राई सीड्स, पल्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यूज़ करने को हम कहते हैं रीयूज़, ताकि एनर्जी कंजर्वेशन हो सके, क्योंकि नए सिरे से अगर हम चीज़ें बनाते हैं तो उसके लिए हमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल, जैसे हमारा जो ग्रीन वेस्ट है उसकी हम मैन्योर बना सकते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं हम रिसाइकलिंग। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 के। आज का जो थॉट है, टुडेज फूड फॉर थॉट, तो आज का हमारा थॉट है बहुत ही प्यारा सा, लिव फॉर हैप्पीनेस। तो आपने कभी उदास नहीं होना है, जो भी काम करना है उसका मोटिव क्या होना चाहिए, आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।